A very good morning to students. Okay, today students we are going to discuss a new practical on workability of concrete. Previously we have discussed about the slum cone test on concrete, which is a test for workability of concrete. Now the second test for workability of concrete is the compaction factor test. Compaction factor test. Okay, so at the end of this practical you will be able to define what is a compaction factor. You will be able to demonstrate the test on fresh concrete by compaction factor, and you will be able to explain the advantages and disadvantages of this compaction factor test. Now, all of you must have seen this activity in your daily routine somewhere in the kitchen, where what you are doing, you are filling up a container with some grains or cereals. Okay. Likewise, the test compaction factor is okay. Similarly, you must have seen that, or you must be knowing that if a rice is poured in a container from a very little height, then you will be requiring an extra or additional effort of shaking the container so as to compact the rice that is filled in the container. Okay, so if now in the second case, if you will fill the container by pouring the rice from a greater height, okay, so what you will find, because of the gravitational force, you will find that the rice in a container got self-compacted internally, thus giving you much height vacant in the container, and you will require a slight shake to the container so as to compact it fully. Okay. Now what you can see in the first and the second condition, के पहले वाले केस में आपने उसको बहुत ही कम हाइट से फिलअप किया कंटेनर को और फिर शेक किया, तो कॉम्पैक्ट हुआ जरूर लेकिन उतना खास नहीं. लेकिन सेकेंड केस में क्या हुआ, आपने हाइट बढ़ा दिया पोरिंग की. ओके, तो उससे क्या हुआ, ग्रेविटेशनल एफर्ट लगा, इंटरनली कॉम्पैक्ट हो गया पूरा राइस, और हल्का शेक करने से मच कॉम्पैक्ट हो गया इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट कंडीशन. ओके, similar is the case for the concrete which we pour on a site. Okay, which we pour on a site. See, here there is an RMC plant or a RMC mixer जिसके थ्रू आप एक स्लैब को कंक्रीटिंग कर रहे हो. तो क्या हो रहा है, यू आर ड्रॉपिंग और पोरिंग द कंक्रीट इन अ स्लैब from a greater height, which results into a self compaction of a concrete, and apart from that, a little vibration in a concrete, a little vibration in the fresh concrete will make it much better compacted, okay, without providing an extra effort for compaction. Okay, so this is what our test going to find. This test is called as a compaction factor test, जिसमें आप यही करोगे कि आप एक ग्रेटर हाइट से कंक्रीट को पोर करते चलोगे और आपको एक बहुत अच्छा कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मिल जाएगा. ओके, नाउ ये प्रीवियसली पढ़ा हुआ हमारा टेस्ट है, दैट इज स्लम कोन टेस्ट, जो हमने पहले करा था. स्लम कोन टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. ओके, आप लो वर्केबल कंक्रीट के लिए भी स्लम कोन टेस्ट कर सकते हो, मीडियम के लिए भी और हाई के लिए. आपने देखा होगा, आपको रिजल्ट्स मिले थे, चार्ट बना था लो वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी और हाई वर्केबिलिटी का. अब जो हम टेस्ट कर रहे हैं दैट इज कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट. कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हम लो वर्केबल कंक्रीट के लिए करते हैं. किसके लिए करते हैं, लो वर्केबल कंक्रीट के लिए, क्योंकि हाई वर्केबल कंक्रीट को वैसे भी इतने कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं होती है, इतने बड़े हाइट से फेंकने की जरूरत नहीं है आपको हाईली वर्केबल कंक्रीट को.
तो हम हाई वर्केबल कंक्रीट में ज्यादा एफर्ट लगाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, वो पानी उसमें ऑलरेडी इतना होता है कि माइनर कॉम्पैक्शन से बाय यूजिंग वाइब्रेटिंग रॉड आपका कंक्रीट बहुत अच्छे से वाइब्रेट हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। बट देयर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस हाईली वर्केबल कंक्रीट कि आपको स्ट्रेंथ पे प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेंथ उतनी नहीं आती है, और वॉइड्स होने के चांसेस है, सेग्रीगेशन होने के चांसेस है, पानी ऊपर आ जाता है, ड्रेन हो जाता है। So there are so many disadvantages of highly workable concrete. So it is preferred to use a low workable concrete on a site, and on working for low workable concrete you need to compact it in a better way in comparison to the highly workable concrete. आपको बहुत अच्छे से उसको compact करना पड़ता है low workable concrete को, ठीक है। तो उसके लिए तरीका बताया गया है कि अगर हम हाइट से कंक्रीट को फेंकते हैं थोड़ा, नो डाउट सेग्रीगेशन होता है, लेकिन हम एकदम ज्यादा हाइट नहीं ले रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग वो हाइट कि जिससे पूरा मटेरियल बिखर जाए। वी आर यूजिंग अ सर्टेन हाइट जिससे एग्रीगेट्स और पूरा मटेरियल प्रॉपरली रहे, और हम बल्क में फेंक रहे हैं उसको। ओके, बल्क में फेंक रहे हैं, सो वी आर नॉट अलाउइंग इट टू लाइक गेट थ्रोन अवे और गेट सेग्रीगेटेड सो इजीली। ओके, तो एक कंक्रीट मिक्सर से आप बल्क में कंक्रीट को एक सर्टेन हाइट से फेंकोगे जो लो वर्केबल है, तो वो आसानी से कॉम्पैक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल डू अ वाइब्रेशन बाय यूजिंग अ वाइब्रेटिंग मशीन और वाइब्रेटिंग रॉड, तो बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फॉर दैट एक कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट बनाया गया है जो सिर्फ लो वर्केबल कंक्रीट के लिए, whereas this is for high workable also। देखिए, this is the equipment or an apparatus जिसको कहते हैं हम compaction factor apparatus, compaction factor apparatus, which consists of two hoppers and a cylinder, which consists of two hoppers and a cylinder. This apparatus was uh, described in IS 1199/1959. It consists of two hoppers and a cylinder. These hoppers are cleaned from inside and उसमें हम ऑयलिंग भी करते हैं साथ साथ में, ताकि कंक्रीट जो हम उसमें पोर करें वो इजीली नीचे ड्रॉप हो। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रैप डोर। आप देख रहे होगे इसमें एक ट्रैप डोर दिख रहा होगा, ये देखिए आप, इसके नीचे एक ट्रैप डोर है। ट्रैप डोर खोलेंगे, कंक्रीट नीचे ड्रॉप होगा, फिर उससे नीचे यहाँ ड्रॉप होगा। पहले तो हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं। द टॉप डायमेंशन, द टॉप डायमीटर ऑफ अ हॉपर इज 254 mm, whereas the bottom diameter of an hopper is 127 mm, and the height of the hopper, the internal height of the hopper is 279 mm. Second hopper, the top diameter of this hopper is 229 mm, whereas the bottom diameter of it is again 127 mm, and the height, the internal height is again 229 mm. आगे चलते, the distance between first and the second hopper is 203 mm. अब सिलेंडर देखिए, सिलेंडर का डायमीटर 152 mm और उसका हाइट 305 mm। अगेन द डिस्टेंस बिटवीन द हॉपर एंड सिलेंडर इज 203 mm। कहने का मतलब दोनों जो है हॉपर का डिस्टेंस भी और हॉपर सिलेंडर का डिस्टेंस भी 203 mm है। अब देखिए, आपको ये कॉम्पैक्शन टैंपिंग रॉड या कॉम्पैक्टिंग रॉड की जरूरत भी पड़ेगी, जिसका डायमीटर बताया हुआ है 16 mm और उसका लेंथ बताया है 610 mm। Okay, now let's start with the procedure of this compaction factor test. Let's start the performance on it, for which you require to prepare a concrete. So we are considering a concrete paste of M15 grade. M15 grade, आपसे शायद इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है कि M15 ग्रेड है, तो आप सिंपली एक रेशियो लोगे, उसका रेशियो मैंने बता चुका था, दैट इज 1:2:4। दैट इज 1 part of cement, 1 part of cement, 2 part of फाइन एग्रीगेट जिसको हम रेती बोलते हैं, एंड 4 part of कोर्स एग्रीगेट जिसको हम गिट्टी कहते हैं।
Now you will prepare a concrete with using a water according to water cement ratio which has been told to you कि कितना water cement ratio maintain करना पड़ता है. That is in a range between 0.4 to 0.6. क्योंकि मैंने बताया आपको वाटर सीमेंट रेशियो इसके बीच में रखोगे तो आपका बहुत अच्छा वर्केबल कंक्रीट बनता है. लेकिन अगर लो वर्केबल कंक्रीट बनाना है तो हम कौन सा रेशियो अभी लेंगे? 0.4 लेंगे, 0.5 लेंगे, 0.6 लेंगे. We will be going to take a ratio, water cement ratio of 0.4. Okay. तो हम आगे बढ़ते हैं. Now क्या कर रहे हैं? Greasing. We are greasing the internal part of this hopper so as to smoothly allow the concrete to drop from one hopper to another. Apart from that, you require a machine, a balance machine or a weighing machine, जिसमें आप सबसे पहले क्या करोगे? जो empty cylinder है उसका weight ले लोगे. That will be considered as W1. Okay. Okay. Now we are going to fill up our first hopper with a concrete up to its edge. Now you are opening the trap door and allowing the concrete to fall into the second hopper. But you will find that some concrete has been still stuck into that first hopper, for which you need a compacting rod to push, to drag it into the second hopper. Okay. Now you will going to open the trap door of the second hopper and allow it to really allow the concrete to get dropped into the cylinder. आप सिलेंडर का टॉप पेज फिनिश कर लोगे और जो कंक्रीट उसमें फिलअप हुआ है, जो कंक्रीट उस सिलेंडर में फिलअप हुआ है, उसको आप मशीन पर वे करोगे. दिस विल बी द वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट. आप देख सकते हो दैट वाज द वेट ऑफ, एक मिनट यहाँ देखिए, दिस इज द वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट. इसको आप क्या नाम दोगे? दिस विल बी योर W2. ओके. पहला क्या था? W1. दैट वाज द वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर एंड दिस वेट ऑफ सिलेंडर प्लस वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, दिस इज योर W2. ओके. अब आपको सिर्फ वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट चाहिए तो क्या करोगे आप? W2 माइनस W1 करोगे, है ना. W2 क्या है आपका? वेट ऑफ सिलेंडर प्लस वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट. W1 क्या है? वेट ऑफ सिलेंडर ओनली. So if you want weight of partially compacted concrete, then it is equals to W2 minus W1. I hope this is clear to all of you students. Now let's move ahead. देखिए W2 नाम दे दिया इसको. अब आगे चल रहे हैं. हमने क्या किया? वापस से एम्प्टी कर दिया सिलेंडर को, वो पूरा का पूरा कंक्रीट नीचे उतार लिया और वापस से सिलेंडर में फिलअप कर रहे हो इन 3 लेयर्स. कभी कभी हम 5 लेयर्स भी यूज करते हैं, कभी 3 लेयर्स, डिपेंड करता है. बहुत से लोग इसे परफॉर्म करते हैं तो 5 लेयर्स में भी, यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स में कंक्रीट को फिलअप करते हैं और टैम्प करते हैं, फिलअप करते हैं और टैम्प करते हैं. ओके. लेकिन 3 से भी काम हो जाता है. तो आप सीधा सीधा 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. 3 पार्ट, यानी एक एक पार्ट भर के आप कॉम्पैक्ट करते चलोगे. ऊपर लास्ट लेयर को कॉम्पैक्ट किया, सरफेस एज को फिनिश किया और इसको आप वापस से वेट करोगे. अब ये क्या हुआ? ये आपका फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हुआ. देखिए क्या डिफरेंस है पहले और दूसरे में. पहला कंक्रीट आपका डायरेक्टली जो फॉल हो रहा था उससे कॉम्पैक्ट हुआ, और सेकंड वाला क्या हुआ? आपने मैन्युअली उसको फिल किया और टैम्पिंग रॉड से कॉम्पैक्ट किया. ओके. तो दोनों में डिफरेंस जरूर रहेगा. अब देखिए डिफरेंस कितना रहता है. जो खुद से फॉलो के कॉम्पैक्ट हुआ और जो आपने कॉम्पैक्ट किया टैम्पिंग रॉड से. ठीक है. ऑब्वियसली जो आपने टैम्प करके कॉम्पैक्ट किया है वो ज्यादा भरा होगा, उसका वेट ज्यादा होगा, और जो खुद से भरा था ड्रॉप हो के उसका वेट कम होगा, क्योंकि उसको आपने कॉम्पैक्ट नहीं किया, वो ग्रेविटी से कॉम्पैक्ट हुआ है. ओके. एनीवेज हम प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ते हैं. ये फुल्ली कॉम्पैक्ट हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट. दिस विल बी नेम्ड एज W3. अब आपको सिर्फ वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट चाहिए तो आप W3 माइनस W1 करोगे. करेक्ट है.
नाउ द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज इक्वल टू, कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपॉन वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अगर हम उसको टर्म्स में देखेंगे तो दैट विल बी W2 minus W1, weight of partially compacted concrete, और weight of fully compacted concrete is W3 minus W1। ये माइनस W1 क्यों कर रहे हैं हम सिलेंडर का वेट निकाल दे रहे हैं, जो कि हम नहीं भी निकाले तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे सिलेंडर का वेट तो इक्वल ही रहेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप W2 minus W3 भी कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो इक्वली लाइक फेयर। Now, what is the usual value ranges for this compaction factor? It ranges somewhere between 0.7 to 0.95, इतनी वैल्यू आती है। कभी अच्छे से कॉम्पैक्ट हो गया तो आपको वैल्यू 0.95 मिलेगी। ओके, अच्छे से कॉम्पैक्ट कब होगा? थोड़ा ज्यादा जब गीला रहेगा तो अच्छे से कॉम्पैक्ट होगा, थोड़ा कम गीला रहेगा तो कॉम्पैक्शन थोड़ा कम होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको ये चीज थोड़ा विजन में आ रही होगी कि थोड़ा गीला रहेगा तो फॉल होते होते अच्छा कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन ज्यादा सूखा रहेगा तो फॉल होते होते भी उतना कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, तो 0.7 वैल्यू जो है ये वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए है। ओके, और 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95 इट इज फॉर लो वर्केबल कॉन्क्रीट। ओके, नाउ आपको समझ गया होगा ये टेस्ट क्यों हो रहा है वर्केबिलिटी के लिए। कैसी वर्केबिलिटी के लिए? लो वर्केबिलिटी के लिए। कैसे कर रहे हो? कॉम्पैक्शन करके। और कैसे कॉम्पैक्शन? एक तो बाय ड्रॉप एंड सेकेंड आप चेक कर रहे हो बाय टैंपिंग रॉड। ओके, तो कॉम्पैक्शन कर रहे हो बाय ड्रॉप तो आपको वैल्यू 0.7, 0.8, 0.9 ऐसी मिलेगी, जो कि इक्वली फेयर है और बहुत अच्छी वैल्यू है कंपैरिजन में, क्योंकि 1 के तो यानी पास ही है ना। 1 के पास मतलब 1 मतलब क्या हो गया कि पार्शियली कॉम्पैक्टेड और फुल्ली कॉम्पैक्टेड दोनों इक्वल था, ठीक है। लेकिन इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने ड्रॉप वाले को टैंप नहीं किया है, वो ग्रेविटी से हुआ है। तो ग्रेविटी से हुआ है और आपको 0.95 वैल्यू मिल रही है तो बहुत अच्छी वैल्यू मिल रही है। 0.9 मिल रही है तो भी बहुत अच्छी है। कहाँ तक? 0.8 तक। 0.7 जो होता है वो बहुत वेरी लो कहलाया जाता है उसे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड? एडवांटेज क्या है कि ये लो वर्केबल कंक्रीट के लिए काम कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ compaction factor test, what is this? It is used for determining the workability of less workable concrete। आप कम वर्केबल कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करते हो कि वो कितना कम है। ओके, okay students, now we are discussing over the next practical on workability of concrete, the name of the name of which is a flow test on concrete। flow test on concrete, हम क्या कर रहे हैं इसमें? एक फ्लो टेस्ट कर रहे हैं किस पर? कंक्रीट पर, ठीक है, कि वो कंक्रीट कितना वर्केबल है, ठीक है। नाउ फॉर विच यू रिक्वायर अ फ्लो टेबल। ये एक फ्लो टेबल है जिसकी देखिए हाइट यहाँ पे दी हुई है कि कितना उसको ऊपर लिफ्ट करना है और उसको नीचे ड्रॉप करना है। इससे क्या होगा? इससे कॉम्पैक्शन होगा। ओके, यू रिक्वायर अ कोन, अ वुडन बार और एक ट्रॉवेल, जिससे आप कंक्रीट को इसमें कोन में पोर करोगे, ठीक है। एंड अ स्केल ऑल्सो। देखिए, व्हाट इज दिस? एक 40 mm की हाइट सेट कर रहे हैं फॉर लिफ्टिंग द टेबल। आप देख सकते हो सेंटर पे एक सेंट्रोइडल पोर्शन पे सर्कल बना हुआ है, जहां पे हम चेक कर रहे हैं लेवल ऑफ अ टेबल बाय यूजिंग बबल बैलेंस। ओके,
नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज, सबसे पहले आप टेबल को क्लीन कर लोगे और ग्रीसिंग कर दोगे, एंड कोन को भी आप वही चीज करोगे। सेंटर पे आप कोन को रख दिए, जहां पे आपने सर्कल बनाया है सेंट्रोइडल पोर्शन पे, वहां पे आप कोन को रख दिए। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप ट्रॉवेल से कंक्रीट को पोर करोगे इनसाइड द सिलेंडर। देखिए, यू आर गोइंग टू पोर द कंक्रीट इन 2 लेयर्स। एक लेयर लोगे और उसको टैम्प करोगे 10 टाइम्स, सेकेंड लेयर लोगे उसको 10 टाइम्स अगेन टैंपिंग करोगे। देखिए, ये सेकेंड लेयर फिलअप हो गई है। अब आप क्या करोगे, इसको दोबारा से टैंपिंग करोगे, दैट विल बी फॉर 10 टाइम्स। ओके, हालांकि वो आपको वीडियो में दिख रहा है कि उसने 10 टाइम्स किया है नहीं किया है पता नहीं, बट यू नीड टू डू इट फॉर 10 टाइम्स। एजेस आप फिनिश कर लोगे, टॉप एजेस विल गेट फिनिश्ड। अब क्या करोगे आप, जैसे आपने फिलअप किया है पूरा कोन, उसके विद इन 30 सेकेंड्स और जस्ट राइट आफ्टर 30 सेकेंड्स आप कोन को लिफ्ट कर लोगे। देखिए वो क्या कर रहा है, जो एडिशनल कंक्रीट बाहर गिरा है उसको क्लीन कर लिया है, टेबल को साफ कर लिया है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू लिफ्ट द कोन राइट आफ्टर द 30 सेकेंड्स। ये देखिए कंक्रीट क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, स्प्रेड हुआ है अकॉर्डिंग टू वर्केबिलिटी, ठीक है ना। आपको दिख रहा है कोलैप्सिबल स्लम्प बना है, मतलब ये हाईली वर्केबल कंक्रीट है, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, आपको विद इन 60 to 75 सेकेंड्स आपको उसको 15 टाइम्स कॉम्पैक्शन देने हैं। तो क्या कर रहा है वो, हर एक कॉम्पैक्शन 5-5 सेकेंड में दे रहा है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, कंक्रीट कंक्रीट फ्लो हो रहा है ऑन अ टेबल, स्प्रेड हो रहा है ऑन अ टेबल। लेकिन आप देखिए, इंस्टेड ऑफ दैट कॉम्पैक्शन आपको दिख रहा है कि कंक्रीट ने कोहेसिवनेस मेंटेन किया हुआ है, यानी कि मटेरियल कोहेसिव है, अभी भी एक दूसरे से लगे हुए हैं, सेग्रीगेट नहीं हुए। ओके, तो वर्केबिलिटी जरूरी है, बट कोहेसिवनेस भी कंक्रीट में मेंटेन होनी चाहिए। इतना भी वर्केबल नहीं हो जाना चाहिए कि कोहेसिवनेस ही ना दिखे। ओके, देखिए 15 टाइम्स कॉम्पैक्शन हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू असेस द डायमीटर ऑफ इट perpendicular to the perpendicular to yeah parallel to both the sides of your table। देखिए, एक तरफ से आया 560 mm, एक तरफ से आया 570 mm, तो आप इसका मीन ले लोगे, दैट विल बी 565 mm। आपका कंक्रीट कितना फ्लो हुआ है, कितना स्प्रेड हुआ है, द डायमीटर इज 565 mm। So basically flow test is another method for workability of concrete जो यूज कर सकती हो in both labs and field। Okay, the test was first developed in Germany in 1993 and covered by PS 1881। ओके, खैर ये सब आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट किस लिए होता है, फॉर हाई एंड वेरी हाई वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, जिसमें आपको स्लम कैसा मिलता है, कोलैप्स स्लम। ओके, these are the things required to you, a flow table, a slum cone mold and a wooden tamping bar, और एक टेबल भी चाहिए आपको। ये प्रोसीजर्स देख लीजिए आप, जो आपको ख्याल में रखने चाहिए। प्लेस द फ्लो टेबल ऑन अ लेवल सरफेस, क्लीन द टॉप ऑफ द टेबल, इस पर बात हो गई है। एंड इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड, प्लेस द स्लम कोन सेंट्रली ऑन द टेबल, ये भी देख चुके हैं हम। फिल द स्लम कोन इन 2 equal लेयर्स, 10 टाइम्स हर एक लेयर्स को टैंपिंग करनी है। फिलिंग द मोल्ड, concrete is struck off flush with the upper edge of the slump cone and the free area of the table top cleaned off। ये भी हमने देख लिया कि हमने आसपास के एरिया का क्लीन ऑफ कर दिया है, एज को हमने
कट ऑफ कर दिया है, फिनिश कर दिया है। हाफ मिनट के अंदर आप कंक्रीट कोन को ऊपर उठा लोगे, ये भी हमने देख लिया। 45 से 75 सेकेंड्स के बीच में आपको 15 टाइम फॉल करवाना है टेबल को, ये भी हमने देख लिया। कितनी हाइट से? 40 mm से। ओके, आप डायमीटर को, जो स्प्रेड कंक्रीट है उसके डायमीटर को आप दोनों एंड से मेजर कर लोगे और एवरेज वैल्यू उसकी रिप्रेजेंट कर दोगे एज अ फ्लो। ओके, देख लीजिए। यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़िए। इफ द कॉन्क्रीट एट दिस स्टेज डज नॉट अपीयर यूनिफॉर्म एंड कोहेसिव, अगर यूनिफॉर्म और कोहेसिव इस तरीके से नहीं दिखता मीन्स बहुत कोहेसिवनेस है मिक्स में। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टेस्ट। आई होप दोनों टेस्ट आपको क्लियर हो गए हैं। और क्या है कि आपके वर्केबिलिटी के ऊपर के टेस्ट हो चुके हैं। हाई वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट करना है ये भी आपको बता दिया गया है, लो वर्केबिलिटी के लिए कौन सा, और सबके लिए स्लम कोन टेस्ट। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जितना ज्यादा कंक्रीट इसमें फैलेगा, आप देखिए इस फ्लो टेस्ट में जितना कंक्रीट फैलेगा उतना ज्यादा कंक्रीट वर्केबल माना जाएगा। So that's it for the lecture for today. I hope it is clear to all of you. We're going to meet with the next lecture on the next day. Okay, thank you.